student, this is our second period of history portion, chapter 3, Sultans of Delhi. Please open your book, children, page 20. Yesterday I taught you about the slave dynasty and the sources. Okay, what are the Tuaregs and all, है ना? Who was Ibn Battuta, the travelers, whose account is very helpful for making history of Delhi Sultanate. Then we are talking about slave dynasty, the last period. Now today's and about the Qutbuddin Aibak also. He died in an accident. Then after when the Qutbuddin Aibak died, Iltutmish come. Okay, the region of Iltutmish started. So let's talk about Iltutmish. Okay. Iltutmish, okay? Iltutmish. So, Iltutmish. So, please keep your book in front of your children. Page 20, second row, first topic, Iltutmish. See. After the sudden death of Qutbuddin Aibak, his son became the Sultan for a brief period. See what I said. See, listen carefully. After the sudden death of Qutbuddin Aibak के बारे में मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन लास्ट पीरियड में. यस, राजपूत किंगडम का कई सारे उन्होंने कैप्चर किए थे. ओके, एंड एक्सीडेंटली ही डाइड. ओके, so after Qutbuddin Aibak, his son became the Sultan for a brief period, for a long period. बहुत लंबे पीरियड के लिए उनके सन, किसके सन? Qutbuddin Aibak के राजा बने थे. सुल्तान मीन्स सुल्तान बने थे. However, he was soon replaced by Iltutmish, the son-in-law of Aibak. ओके, अब उनके जो सन थे Qutbuddin Aibak के, soon replace, उनको मतलब थ्रोन से, मतलब राजगद्दी से उनको हटा दिया गया और फिर हट गए. और फिर उनके बाद कौन राजा बने चिल्ड्रन? सन इन लॉ. हाउएवर ही वाज सून रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश, द सन इन लॉ ऑफ ऐबक, जो ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे. क्लियर? हु वाज एन इफिशिएंट कॉन्करर एंड रूलर. इफिशिएंट मीन्स कैपेबल रूलर थे, वो बहुत इफिशिएंट थे. कौन? इल्तुतमिश. ओके, हु वाज इफिशिएंट कॉन्करर एंड रूलर. ड्यूरिंग हिज रीन द पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत began to be consolidated. In fact, many historians regards Iltutmish to be the first real ruler of Delhi Sultanate. Here, what it is given, children? During his reign. Whose reign, children? Iltutmish. Okay. During his reign, the power of the Delhi Sultanate began to be consolidated. है ना, काफ़ी पावर बढ़ गई थी. किसके राज में चिल्ड्रन? इल्तुतमिश के राज में, जब सुल्तान बने थे इल्तुतमिश तब. ओके, मेनी हिस्टोरियन रिगार्ड इल्तुतमिश टू बी द फर्स्ट रियल रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तनत. मतलब कई सारे जो लोग थे. ओके, मेनी हिस्टोरियंस, जो हिस्ट्री लिखते हैं, उन्होंने रिगार्ड किया. रिगार्ड मतलब किसके बारे में तारीफें लिखी चिल्ड्रन? इल्तुतमिश के बारे में. ओके, in fact many historians regard Iltutmish to be the first real ruler of the Delhi Sultanate, कि एक रियल योद्धा है. कौन? इल्तुतमिश. है ना, किसने लिखा? हिस्टोरियन ने. अब ये हिस्टोरियन कौन है? जो हिस्ट्री लिखते हैं. उन्होंने अपने लेख में, है ना, जो भी उन्होंने लिखा, उन्होंने काफ़ी रिगार्ड्स दिया, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस बताई इल्तुतमिश की, कि वो बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट रूलर थे. ओके, सो सून आफ्टर ascent to the throne, Iltutmish was faced with several challenges. जैसे वो थ्रोन पर बैठते हैं, he faces many challenges. अब राजा है तो challenges उनको फेस तो करना ही पड़ेगा. Yes, soon after the ascent to the throne, Iltutmish was faced several challenges which he handled with prudence and stabilized the empire with securing his own position. अब जिसको उन्होंने फेस किया काफ़ी इंटेलिजेंस तरीके से. ओके,
काफ़ी इंटेलिजेंस तरीके से किसने फेस किया चिल्ड्रन? सो इल्तुतमिश फेस मैनी चैलेंजेस, है ना, वेरी इंटेलिजेंटली, ओके, बहुत इंटेलिजेंटली के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ ही फेसेस मैनी चैलेंजेस. क्लियर? So, in fact, many historians regard Iltutmish to be the first real ruler of the Delhi Sultanate. That's why our historians regards our Sultan Iltutmish to as a very efficient ruler. So, see the next para, children. Soon after his ascent to the throne, Iltutmish has faced with several challenges which he handled with prudence and stabilization. कई चैलेंजेस फेस करने पड़े और उसको उन्होंने फेस किया विथ देयर इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू इल्तुतमिश ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किया. क्लियर? वाइल सिक्योरिंग हिज ओन पोजीशन, अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए ही फेसेस मेनी चैलेंजेस एंड ही सक्सेस ऑल्सो. क्लियर? सो लाइक ऐबक, Iltutmish was also a slave in his earlier life. जैसे मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, अर्लियर लाइफ में, है ना, पहले के जो उनके जो भी अर्लियर लाइफ थी, है ना, उसमें वो स्लेव, यानी स्लेव समझता है ना, हाँ बिल्कुल, अंडर किसी के काम करना, किसी राजा के काम अंडर काम करने को स्लेवरी कहते हैं. ओके, तो वो भी स्लेव ही थे जो इल्तुतमिश थे. So, like Aibak, Iltutmish was also a slave in his early life. He belonged to the Ilbari tribe. अब वो कौन से ट्राइब को बिलोंग करते थे चिल्ड्रन? इलबरी ट्राइब. प्लीज अंडरलाइन इट. इलबरी ट्राइब. द अमीर्स Turkish noble of Delhi objected to his ascent to the throne. Iltutmish crushed their revolt successfully. अब देखो इसमें क्या बता रहा है? द अमीर्स जो अमीर्स थे कौन थे? टर्किश नोबल्स, है ना, जो टर्किश नोबल्स थे ऑफ दिल्ली, ऑब्जेक्टेड टू हिज एसेंट टू द थ्रोन, उन्होंने उसके राजगद्दी पर होने पर क्या बोलते हैं उसको, अपोजिशन शो किया. ओके, खिलाफ में, जैसे कि अरे ये तो स्लेवरी के खानदान का है, यानी ये पहले स्लेव थे, है ना, किसी के अंडर काम करते थे, इसको इल्तुतमिश को कैसे राजगद्दी पर बिठा दिया गया, तो उन्होंने उसका अपोज किया. तो उस चैलेंज को भी इल्तुतमिश में काफ़ी ब्रेवली, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंस ले से उस चैलेंज को भी उसने एक्सेप्ट किया. किसने? इल्तुतमिश ने. ओके, आफ्टर सक्सीडिंग अगेंस्ट हिज एनिमी, ओके, सक्सीड हो गए, जब वो जीत गया अगेंस्ट अपने एनिमी से, हर बार में जीत गए. कौन? इल्तुतमिश. ओके, आफ्टर सक्सीडिंग अगेंस्ट हिज एनिमीज, इल्तुतमिश इंगेज हिमसेल्फ इन अ सीरीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट. ओके, इल्तुतमिश अपने आप को एंगेज कर लिया इन अ सीरीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट. कॉन्क्वेस्ट मीन्स वॉज टू रिवोल्ट, टू फाइट अदर किंग्स, है ना, टू फाइट अदर किंग्स एंड कैप्चर देयर किंगडम्स, है ना, ये सब चीज़ों में उन्होंने अपने आप को बिजी कर लिया. किसने? इल्तुतमिश ने. ओके, सी आफ्टर सक्सीडिंग अगेंस्ट हिज एनिमीज, Iltutmish engaged himself in a series of conquest. Okay, सीरीज एक के बाद एक लड़ाइयाँ लड़ी and he captured so many kingdoms. He captured so many kingdoms. He defeated the ruler of Ranthambore, Jalore, Ajmer, Sambhar, Gwalior, Malwa, Ujjain, Kannauj and Varanasi and annexed their kingdom. Okay, ये सब जगह पर उन्होंने अटैक किया एंड एनेक्स देयर किंगडम, उनके किंगडम को अपने अंडर कर लिया. किसने? इल्तुतमिश ने. अंडरस्टूड? ही फेसेस मैनी चैलेंज एंड ही फॉट मैनी वॉर्स एंड कैप्चर देयर किंगडम, और कई सारी जगह उन्होंने जीती और उन्हें कैप्चर अपने किंगडम को कर लिया, यानी उनके किंगडम को कर लिया. सॉरी चिल्ड्रन. सो एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया came under his control and the territory of the Delhi Sultanate. Northern India. See the diagram, page 21. Dark side of that diagram. See this dark side. Okay. ये पूरा एरिया किसके अंडर था? इल्तुतमिश के अंडर था, नॉर्थ साइड. ओके, सो
Under his control and the territory of the Delhi Sultanate was extended up to the Narmada Valley. So Delhi Sultanate extended up to Narmada Valley. अब जो डायग्राम मैंने बताया पूरी नर्मदा वैली तक पूरा एरिया किसके अंडर था चिल्ड्रन? यस, इल्तुतमिश is the under Iltutmish's ruler. Okay. Now Iltutmish saved India from a possible Mongol attack. अब अनदर पैरा में देखेंगे कि इल्तुतमिश सेव इंडिया फ्रॉम अ पॉसिबल मंगोल अटैक से इल्तुतमिश ने हमारे इंडिया को सेव किया, बचाया। व्हेन गंगीज खान अटैक्ड पर्सिया प्रेजेंट डे ईरान, जब गंगीज खान ने अटैक किया कहाँ? पर्सिया पे, जो ईरान है अभी। ओके। द शाह ऑफ पर्सिया fled his kingdom and appealed to Iltutmish for shelter. शाह, जो वहाँ के शाह, जो राजा थे शाह, ओके, वो हार गए गंगीज खान से और उन्होंने शेल्टर मांगी, पनाह मांगी, किससे? इल्तुतमिश से। ओके। सो एंड अपील टू इल्तुतमिश फॉर शेल्टर विच द लेटर रिफ्यूज, फिर उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। किसने? इल्तुतमिश ने उनको पनाह देने से रिफ्यूज मना कर दिया। ओके। सी द नेक्स्ट वन। द आर्मी ऑफ गंगीज केम अप टू द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। अब जो गंगीज था जिसके बारे में मैंने पहला में बताया कि गंगीज ने अटैक किया था ईरान एरिया पर और शाह शेल्टर में आया था, किसके अंडर? इल्तुतमिश के अंडर आया था, वो गंगीज के बारे में बात कर रहे। सी द आर्मी ऑफ गंगीज केम टू द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर में आ गए of India and pursuit of the Shah of Persia but left without launching an attack on India, ताकि वो शाह को कैप्चर कर सके, अपने अंडर में ले सके, मगर इंडिया में वो एंटर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इल्तुतमिश का राज चलता था करके शाह हमारे नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर से ही वापस चले गया। क्लियर? शाह को अपने अंडर में नहीं कर पाया। सो then our next topic is Razia Sultan. It is also very interesting children. See, अच्छा, इसके बारे में समझ में आया चिल्ड्रन? इल्तुतमिश के बारे में है ना, सन इन लॉ थे। ओके, काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए उन्होंने और कई सारे किंगडम पर कैप्चर किया, कई सारे किंगडम को अपने अंडर में ले लिया, है ना। और जो पूरा नॉर्थ साइड था अंडर द नर्मदा वैली, वो पूरा एरिया किसके अंडर था? यस, इल्तुतमिश के। ओके। और फिर बाद में जो गंगीज खान थे जिन्होंने पर्सिया शाह पर अटैक किया, शाह ने शेल्टर मांगा इल्तुतमिश को। ओके। और फिर वो अटैक करना चाहता था, जस्ट बिकॉज ऑफ इल्तुतमिश ही कांट एंटर आर इंडिया। ओके, क्योंकि राज किसका चलता था? यस, इल्तुतमिश का। सी द नेक्स्ट, रजिया सुल्तान। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इज रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया तो लड़की का नाम दिख रहा है और सुल्तान कैसे हुई? एट दैट टाइम क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि रजिया, दैट मीन्स कोई गर्ल है ना, राज कर सके? लेट्स सी। रजिया सुल्तान 1236 to 1239 तक का इनका राज चला था। ओके, इनका रीन चला था। सी, इल्तुतमिश नॉमिनेटेड रजिया सुल्तान एज हिज सक्सेसर। अब जिनके बारे में हमने पढ़ा, इल्तुतमिश के बाद कौन राजा बनी? उनकी बेटी रजिया सुल्तान। ओके। सी, इल्तुतमिश नॉमिनेटेड मतलब उन्होंने अपनी राजगद्दी को किसके थ्रू सौंप दिया? यस, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड रजिया सुल्तान as his successor as he found his son to be weak and incompetent. हाँ, उनको लगा कि जो भी मेरे सन हैं they are not capable to rule here in our kingdom, है ना। उनको लगा कि जो भी मेरे सन हैं, जितने भी मेरे बेटे हैं, रजिया सुल्तान से ज़्यादा कैपेबल नहीं है। ओके। सो and he found his son to be weak and incompetent. Razia's rule was short and fought with challenges. Razia throne पर तो बैठ गई, that means he is ruling in the seats of his father. Okay, Iltutmish, but she faces
so many challenges. Okay, what challenges? अब देखो रज़िया सुल्तान कौन थी? शी इज़ अ गर्ल. ओके, बट अब उनके पिता ने तो उनको राजगद्दी पे बिठा दिया, बट शी फेसेस मैनी चैलेंजेस. चैलेंजेस कैसे कि लड़की है, लड़की ऑर्डर देगी, हम मानेंगे कैसे? क्या पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि गर्ल ऑर्डर दे रही है और बाकी सारे उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं? नहीं. तो ये ये जो सारी बातें हैं, जो गवर्नर्स थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने काफ़ी चैलेंज दिया रज़िया सुल्तान को, और रज़िया सुल्तान ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किया, है ना, और आखिरकार उनको अपने थ्रोन से मतलब राजगद्दी से हटना पड़ा. तो इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्लास में हम रज़िया सुल्तान का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर. प्लीज़ रीड आउट द टॉपिक इल्तुतमिश केयरफुली एंड मार्क आउट वॉट एवर यू see that is anything is important on that para, please mark. Okay, so good day, bye bye everyone.